Okay, doctors and IITians, in chapter biomolecules, I hope you are all set, all done with what are biomolecules, what are these two categories, macro and micro, based on molecular weight, based on treatment with trichloroacetic acid, and filter, the filtrate part, that is acid soluble fraction, non-filtrate part, yeah, retinant part, that is acid insoluble fraction. All these things we are completed. Perfect. After that, analysis, quantitative, qualitative, chromatography, थोड़ा बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने देख लिया इसका. Perfect. Chromatography we discussed or not? So we discussed in short. हाँ, ठीक है, कोई बात. क्रोमेटोग्राफी जो है एक आया था, लेकिन उसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तब बता दूंगा. वैसे क्रोमेटोग्राफी that is separation and purification and identification of molecules based on development of color or colorful writing. Perfect. That is what chromatography. After that, we had discussed enzymes, enzyme characters, enzyme mechanism, enzyme activation energy, है ना? Then inorganic, organic catalyst, then exception. एक exception बताया था organic catalyst का मैंने, जो higher temperature पर survive करता है. Anyone? Tag polymers. Which is isolated from a bacteria, Thermus aquaticus. Perfect. चलिए, उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा factors affecting enzyme activity. It was very important because इसमें कुछ graphical representation हमने देखा, जिसमें मैंने आपको बताया enzyme concentration, substrate concentration, effect of pH and temperature, effect of inhibitor. Michaelis-Menten equation, Michaelis-Menten constant. What was Km? Anyone? What was Km? Km is that concentration of substrate at which the velocity of reaction is half of its maximum. Perfect. Km is that concentration of substrate at which the rate of reaction or the velocity will be half of its maximal velocity. That is 1/2 Vmax. Perfect. So that's all. Apoenzyme, holoenzyme, coenzyme, cofactor, prosthetic part. That's all at enzyme part. Then we started at proteins. Proteins में amino acid मैंने आपको बताया, chiral carbon बताया, N terminus, C terminus, दोनों के बीच बनने वाला एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक का N, एक का C, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड. Peptide bond dehydration synthesis because one water molecule released, condensation reaction, so many points we discussed in protein. But the most important part of that protein was primary, secondary, tertiary and quaternary structure. And the order of stability in that protein was quaternary, the most stable because number of bonds are more. Then tertiary, then secondary, then primary structure. Perfect. Primary बहुत unstable structure है, usually नहीं रहता. जब ये प्रोटीन फैक्ट्री में बन रहा होता है तब ये प्राइमरी मोड में होता है. देन धीरे धीरे इसकी कॉइलिंग होने लगती है एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड सो ऑन. राइट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड. डालिए हेडिंग न्यूक्लिक एसिड. चलिए, आई होप विजिबिलिटी इज परफेक्ट. स्मिरा, विजिबिलिटी इज क्लियर? बनौली, मानस, कौशिकी, ईशानी? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड पहले समझते हैं फिर लिखते हैं. न्यूक्लिक एसिड दैट एसिडिक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट और फाउंड इन न्यूक्लियस. The acidic substance that was present in nucleus was known termed as nucleic acid. Basically जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो ही हैं, डीएनए और आरएनए. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड. परफेक्ट. उसे डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस हैं जो बच्चों की तरह मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई शेयर द स्क्रीन एंड विल डू इट. परफेक्ट. सो जहां तक डीएनए और आरएनए की बात है, इस डीएनए और आरएनए में आपको यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल बेस्ट क्यों है, व्हाई आरएनए इज नॉट अ बेटर जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज द डिफरेंस. बेस्ड ऑन दैट डिफरेंस ओनली डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल. सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है डीएनए में, आरएनए में सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है.
सो इट इज मोर एक्टिव, मोर अनस्टेबल, इसलिए उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसिडर नहीं किया जाता। द मोर कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो वो डीएनए आरएनए क्या है, उसके पहले न्यूक्लिक एसिड, ईदर इररिस्पेक्ट ऑफ डीएनए और आरएनए, उनकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो बेसिक केमिस्ट्री उसकी समझ में आना अपने को बहुत जरूरी है। परफेक्ट। जैसे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, जैसे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता था, वैसे न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा। क्यों और कैसे अभी देख, बस कुछ पॉइंट्स लिखते चलते हैं साथ, है ना। As far as your NCERT is concerned, चलिए पॉइंट नंबर 1, acidic substance present in nucleus। ये प्लस और एंटी लिखा मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। परफेक्ट। सर हाँ सर आप मुझे अंदर लेते हो क्या मीटिंग से? मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हुआ। प्रणव पवार, यस सर। okay, you are admitted। थैंक यू सर। Acidic substance present in nucleus। Perfect। Chemically, it is polynucleotide। Chemically, it is polynucleotide। Then what is polynucleotide? यदि आप मुझसे पूछें, तो this is what many units of, जिसको एक तरफ लिखता हूं ताकि आपको समझा सकूं। Polynucleotide is what? Many units of न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से समझिएगा और ज्यादा लंबा खींचना नहीं, इसमें कंसेप्ट पकड़ना अपना मेन टारगेट है। मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड देन? न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। न्यूक्लिक एसिड एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इररिस्पेक्ट ऑफ डीएनए आरएनए। अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं दिस इज व्हाट बायोमोलिक्यूल। केमिकल इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Polynucleotide means what? Many units of nucleotide. That is consist of nucleoside and phosphate group. But nucleoside consists of pentose sugar and nitrogenous base, N base। इसको क्या कहते हैं? Nitrogenous base। N base मतलब nitrogenous base। Perfect। यस सर। Okay। Pentose sugar may be of two types. Either it may be deoxyribose sugar or ribose sugar। Ribose sugar or deoxyribose sugar। Whereas nitrogenous base may be of two types. Either it is purines or it is pyrimidines। Either it is purines or pyrimidines। Phosphate group तो कोई समस्या नहीं, it is present in the form of PO4 double minus। PO4 double minus phosphoric acid। Perfect। Deoxyribose sugar यदि आप मुझसे पूछें तो I need to draw pentose sugar in this manner। There are 5 carbons, 1, 2, 3, 4, and here CH2OH, 5th carbon। Perfect।
1 2 3 4 एंड 5, राइट? राइबोस शुगर यदि आप मुझसे पूछें तो अगेन आई कैन ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर बट विद अ डिफरेंस 1 2 3 4 and 5 CH2OH, no problem. So there is no difference, but one oxygen is less, deoxy na, one oxygen must be less, it is deoxy. If it is deoxy, तो सेकंड पोजीशन पर मैं क्या कर देता हूं OH, और यहां क्या कर देता हूं H. सेकंड पोजीशन में यहां क्या कर दिया OH राइबोस शुगर, और यहां क्या कर दिया H, एक ऑक्सीजन का. रेस्ट आप मुझसे पूछे तो लगभग सारा से HOH HOH CH2H OH HOH HOH CH2H. परफेक्ट. सर एक अब बार यहाँ स्ट्रक्चर रिपीट करो. हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बनाऊंगा तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बेटर टू राइट ऑन सेकंड पोजीशन. उससे फायदा ये होगा कि आपको सेकंड पोजीशन पर समझ में आएगा डिफरेंस, जिसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं. ओके, नो प्रॉब्लम. अभी देखते हो डीऑक्सी राइबो शुगर, कौन सी शुगर है? पेंटोज. विच शुगर इट इज? पेंटोज. If it is pentose means carbon should be what? How many? 5. 5. So 5 कार्बन. मुझे एक स्ट्रक्चर यदि बनाना है तो मैं 5 कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ? 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिया और इस तरह से एक रिंग बनाई, और यहाँ पर क्या है, सेकंड पोजीशन मैंने OH रख दिया. यहाँ पर एक कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और यहाँ पर होता है CH2OH यानी फिफ्थ कार्बन. ये वाला कार्बन फिफ्थ कार्बन. तो ऐसे 5 शुगर, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर हो गई. अभी जो पेंटोज शुगर हुई इसमें दोनों ही पेंटोज हैं, वो डीऑक्सी राइबोज हो या राइबोज हो. इफ बोथ द शुगर्स आर पेंटोज शुगर, then I draw the pentose sugar structure. But in deoxyribose sugar, what I did, here is only H. But in case of ribose, here it is OH. That means if someone will ask you, what is the difference between ribose sugar and deoxyribose sugar, then second position in RNA or ribose sugar, at second position there is hydroxyl group, that is OH. But in case of DNA, it is H. Rest, the structure is completely same. Home. Now you got it? Yes, sir. Okay, perfect. So, based on this structure only, now one can easily identify. I need not to tell you, the dinner batch at least, why RNA is more stable. Anyone can tell me why RNA is more stable now? Because of presence of hydroxyl group at second position, that makes it more reactive than DNA. Therefore, it is more unstable and can't be a better genetic material. But मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि नहीं है. The viruses like corona, the viruses like HIV, they have the genetic material RNA. They have the genetic material RNA. But what they do, what they usually do, they attack on the body cell. We know that the cell has the receptor that will open the door. Coronavirus will enter and will bind and will attack on your cellular DNA. And after trapping that cellular DNA, your DNA had to form whatever the virus RNA will tell them, so that your cell DNA start producing viral DNA, viral RNA. Perfect. In that way, your cell is completely trapped and your cell becomes a factory for coronavirus. Okay. Check. Instead of getting more deeper in that one, we need to go for purines. There are two types of purines: adenine and guanosine. The guanine. Perfect. Adenine, guanine. Pyrimidines are 3: cytosine, thymine, and uracil.
Let me very clear. Can you differentiate between thymine and thiamine? Anyone? Thymine and thiamine? Only pronunciation is different, spelling is different, but a big difference is thymine is a nitrogenous base, my dear. Thymine is a nitrogenous base, whereas thiamine is vitamin B complex. Thiamine, THIA. This is thymine. So make it very clear. ये लिखाता नहीं हूं मैं कहीं पर, but classes में you need to understand the small things. Thymine and thiamine. Okay. So the representation of adenine is by A, guanine by G, cytosine by C, thymine by T, uracil by U. Perfect. Now the complete quorum is done. Polynucleotide, which is a chemical structure for nucleic acid, which are many units of nucleotide because it is poly. So one unit of nucleotide is consist of nucleoside plus phosphate. So if someone will ask you, what is the difference between nucleoside and tide? So side has no phosphate. Tide minus phosphate is side. Tide minus phosphate is side. You must know somewhere. Tide minus phosphate is side. Achal, noted? Sir, what you Sir. have written after puriness? Adenine. Adenine and guanine. ये मैंने कहा था Sir, तो not पढ़ के that one. That besides it. adenine and guanine, GUANINE. थोड़ा सा पढ़ के रखा करें क्लास शुरू होने के पहले, so that words clear भी होंगे और समझ में भी आएंगे. Yes. GUANINE, guanine, adenine and guanine. Okay. Now, if someone will ask me to draw either DNA or RNA, so no problem. It's simple. मुझे यदि DNA बनाने को कोई कहे, तो what I should draw? मैं यहां बनाता हूं DNA का स्ट्रक्चर. पहले पॉइंट्स क्लियर करते हैं. मैंने एसिडिक सब्सटेंस आपको बता दिया, केमिकल लेटेस्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो मैंने आपको बता दिया, बेसिस मैंने आपको बता दिए, है ना. प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स. Purines and pyrimidines are two nitrogenous bases. अब प्यूरिन्स और pyrimidines में डिफरेंस आपको मुझे बता देना चाहिए. वैसे तो डिफरेंस मुझे डीएनए आरएनए में भी बताना चाहिए, कोई बात. मैं एक्सप्लेन करता हूं बट असाइनमेंट के साथ, असाइनमेंट देते हुए. असाइनमेंट. difference between number 1 DNA and RNA and purines and pyrimidines. मैं एक्सप्लेन करता हूं बट लिखने का मौका आपको नहीं देता. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे लिखेंगे या समझ लेंगे. पहले डीएनए आरएनए. In case of DNA and RNA difference, second position hydroxyl group, number 1, which is absent in DNA sugar. Number 2, if a DNA molecule we study, then there will be adenine, guanine, cytosine, and thymine. But in case of RNA, it is adenine, guanine, cytosine, and uracil. No thymine. No thymine in RNA. RNA is more unstable. DNA is comparatively stable. In plant viruses, RNA is the main genetic material, but in case of animal viruses, DNA is the genetic material. Exceptions are HIV, corona, like those viruses that have RNA as genetic material. Usually, animal viruses में DNA होता है, plant viruses में RNA genetic material होता है. Perfect. These are some difference. DNA is double-stranded, RNA is single-stranded. DNA is double-stranded, RNA is single-stranded. This difference is more important and needed significantly in class 12. But अभी आपको उसको ढूंढ के at least 3 to 4 difference I expect. What is the difference between purine and pyrimidines? Purine and pyrimidines. यहाँ दिख रहा है, yes, दिख रहा है. Purines versus pyrimidines. परफेक्ट. छोटा सा डिफरेंस, मतलब जो जरूरी डिफरेंस है उतनी बात अपन करें प्यूरिन्स और pyrimidines की.
तो प्यूरिन्स और pyrimidine में यदि आप मुझसे पूछें तो प्यूरिन जो है दिस इज डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड 9 मेंबर्ड, डबल रिंग स्ट्रक्चर, नंबर 2 9 मेंबर। लिख ले चलेंगे मेरे साथ, इतना तो लिख ही लेंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। परफेक्ट। जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं कैमरे को कर सकता हूं, जस्ट मिनट। Now sufficiently space is there. Okay. Double ring structure is purine, 9 membered structure is purine. Perfect. Whereas pyrimidine is single ring at 6 member. Single ring structure and 6 member. अब आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर यदि अपन बनाए, इसका स्ट्रक्चर आपको ना कभी पूछा जाना है ना कभी आपको बनाना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी है ना। बस इतना अपने को ध्यान रखना है कि प्यूरिन जो है वो लार्ज साइज कंपाउंड है और pyrimidine जो है वो स्मॉल साइज है। लार्ज साइज और स्मॉल साइज। देखिए प्यूरिन मूर्खों की तरह से, हमें तो याद रखने से मतलब है, हमें याद रखने से मतलब है। प्यूरिन डबल रिंग छोटा वर्ड है, pyrimidine बड़ा वर्ड है। जो बड़ा वर्ड है वो छोटा है, 6 मेंबर्ड है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि जो छोटा वाला है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर्ड है, लार्ज मॉलिक्यूल है, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। और डीएनए स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे जिस पॉइंट की जरूरत है वो पॉइंट मैं यहां पर बस मेंशन कर दूं। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, कौन सा? प्यूरिन, विच इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें जो नाइट्रोजन है, प्यूरिन चूंकि नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं अपन, सो इसमें जो नाइट्रोजन है वो किस किस पोजीशन पर नाइट्रोजन? 1 3 7 9 नाइट्रोजन आर एट 1 3 7 9 1 3 7 9, राइट। जबकि pyrimidine जो है वो केवल 2 ही पोजीशन पर है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। नाइट्रोजन आर एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। इसकी जरूरत पड़ेगी भी थोड़ी देर में जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बताऊं। परफेक्ट। ये ज्यादा बेटर समझ में तब आएगा जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊं। ओम बोलिए। सर 9 नंबर और 6 नंबर एक बार रिपीट करिए और 4th पॉइंट। प्यूरिन यदि मैं आपसे बात करूं तो डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओम, यू हैव एनसीईआरटी? यस Can you get the page number 145? NCERT, please find the page number 145. ओके सर। You got the structures? You got the structure? यस सर। 1 मिनट सर। आपको शेयर करके सभी को बता देता हूँ स्ट्रक्चर, है ना, सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। यस सर, गॉट इट। फिर भी मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनके पास वो नहीं होगा, ताकि वो भी समझ लें। मैं सारे स्ट्रक्चर बच्चों शेयर कर दूंगा। लेट मी एवरीवन कैन सी द इमेज। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। सो यदि आप देख पा रहे हो तो बोर्ड पर जो भी लिखा था, जो आपने नोट किया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है एडेनाइन, यहाँ पर दिख रहा है यूरासिल, एडेनोसिन, यूरिडीन, एडेनाइलिक एसिड। आपको देखना है पहले 2 स्ट्रक्चर, एडेनाइन और यूरासिल, जो नाइट्रोजन बेस लिखे। फिर उसमें उन्होंने क्या किया कि एक
ऐड कर दिया नाइट्रोजनस बेस, सॉरी शुगर, जब ये बेस शुगर से अटैच हो गई तो वो एडेनाइन बन गया एडिनोसिन और यूरासिल बन गया यूरिडीन। यानी फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स आर नाइट्रोजनस बेस, देन दे एडेड शुगर, व्हेन दे एडेड शुगर तो उन्होंने क्या किया, यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाने के बजाय वहां पर लिख दिया यूरासिल, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। एडेनाइन के वहां पर लिख दिया उन्होंने ए, मतलब एडेनाइन, है ना, ताकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी समझ में आए। तो फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स आर नाइट्रोजनस बेस, सेकंड टू स्ट्रक्चर्स व्हेन sugar is added, when sugar is added it becomes adenosine and uridine, and when phosphorus is added it becomes acid, that is nucleic acid, adenylic acid, that is nucleotide. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो तो बोलिए किसी को। ओके परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, दैट आई शेयर ऑल्सो। और अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया आपको इस स्ट्रक्चर को देखकर? मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि डीएनए कैसे हम लोग बनाने वाले, राइट? चलिए बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल पेन डाउन कर दीजिए, बी फोकस्ड, क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है स्ट्रक्चर समझने में। लेट मी, आई एम ट्राइंग टू फॉर्म डीएनए, पहले समझ लीजिए, फिर बनाने का मैं समय दूंगा आपको। कहां पर बॉन्ड बनता है, जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड को ऐड करते हुए वी वर ट्राइंग टू डेवलप, टू सिंथेसाइज प्रोटीन, इन दैट वे some nucleotide it becomes polynucleotide. Then how a nucleotide will form, that we just saw in our screen. Now on board we can see what I am doing. I just inverted the structure. Like this. Now what I'm going to do, this is pentose sugar, everyone agree? 1 2 3 4 5 6 6 pentose sugars are there, agree? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. so as far as labels are concerned, 1 2 3 4 and fifth carbon will be here, so I write it fifth. Again same 1 2 3 4 5, ध्यान देंगे तो बहुत इजी है, नहीं तो इससे ज्यादा टफ नहीं। 1 2 3 4 5, agree? 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. So one thing, if you can observe, if in this strand 5' is free, so here 3' is free. So in the opposite one 5' is free and its part, that is 3' free. Therefore this strand is known as anti-parallel strand. Therefore it is known as anti-parallel strand. 5' 3', 5' 3'. Now अभी सिर्फ ये शुगर है, इस शुगर में मुझे क्या ऐड करना है? शुगर में यदि मैं बेस ऐड कर देता हूं तो इट बिकम साइड। चलिए भाई पहले साइड बना लेते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया एडेनाइन, ये मैंने ऐड कर दिया गुआनोसिन गुआनिन, ये मैंने ऐड कर दिया थाइमीन। जैसे बुक में स्ट्रक्चर, हाँ ओम बोलो। सर आपने वो स्ट्रक्चर को इन्वर्ट क्यों किया? स्ट्रक्चर को इन्वर्ट क्यों किया? बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। मुझे बताइए ओम, जब आप मुझसे हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ का डायरेक्शन, फिंगर का डायरेक्शन और मेरे हाथ के फिंगर का डायरेक्शन सेम होगा क्या? नहीं सर। आपका मेरी तरफ होगा, मेरा आपकी तरफ होगा, अग्री? यस। तभी बॉन्ड अच्छा बन पाएगा, अग्री? हाँ सर।
क्या हम दोनों एक ही डायरेक्शन में फिंगर करके हाथ मिला सकते हैं क्या? नहीं सर। तो टू मेक अ बॉन्ड दे आर एंटी पैरेलल, और स्ट्रक्चर ही उसका वैसा होता है बेटा, उसका कोई लॉजिक नहीं, बस ये है कि टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब एडेनाइन किसके साथ बाइंड होता है? तो थाइमीन, डबल बॉन्ड। ग्वानिन बाइंड होता है साइटोसिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड। थाइमीन बाइंड होता है एडेनाइन के साथ, डबल बॉन्ड। जहां भी ए आएगा उससे बाइंड होगा थाइमीन, और जहां भी जी आएगा उससे बाइंड होगा साइटोसिन। ATGC ऐसे बॉन्ड बनते हैं। ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अभी मैंने क्या किया? सिर्फ साइड बनाया, न्यूक्लियोसाइड। अभी मैंने टाइड नहीं बनाया। टू मेक इट टाइड, व्हाट आई नीड टू डू? एनीवन? Anyone? Add phosphate. phosphate group. Yes, I need to add phosphate. To add phosphate, what I'm doing? अभी मत बनाइए, सब बाद में बनाइएगा, समय दूंगा आपको। To add phosphate and to make it nucleotide, to add phosphate and to make it nucleotide, what I'm going to do? See, first nucleotide 3' bind with 5' with a phosphoric acid. 3', once 3', another 5', phosphoric acid. 3' is free. Once 3', another 5', phosphoric acid. Once 3', another 5', phosphoric acid. Once 3' is free. See, if you can identify, if you are understanding, then the structure is complete nucleotide. Why tide? Phosphorus is there, sugar is there, and base is there. Base plus sugar plus phosphorus, it is what? Tide. अब वो phosphoric acid कैसे जुड़ा और water molecule कैसे निकला? Again dehydration synthesis. Again dehydration synthesis, but this time phosphodiester, यानी मैं दो वाटर मॉलिक्यूल निकालने वाला हूं। डाइएस्टर, एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस, दो वाटर मॉलिक्यूल का निकालने वाला हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग, इफ I can go through this structure, here is at third position OH, HOH, HOH होता है ना, तो थर्ड पोजीशन पर OH और एक CH2OH। भाई फिफ्थ का CH2OH और थर्ड का OH, यदि मैंने यहाँ OH रखा, यहाँ CH2OH रखा, one can understand कि मैं यहां से दो वाटर मॉलिक्यूल तो निकाल ही सकता हूं। भाई CH2OH है, मेरे पास OH है, so I should withdraw two water molecule. Yes, I can. 4 hydrogen and 2 oxygen. Yes. Agree? Ishani, Jayavardhan, Kaushiki, Bandar? Yes, sir. Yes, So sir. if I'm releasing minus 2H2O, so the reaction I termed as phosphodiester. Phosphodiester. So first I draw pentose sugar, pentose, opposite pentose. Oxygen इधर था, सब में ऊपर, मैंने नीचे कर दिया, to make it like this, anti-parallel. Perfect. सर वो CH2OH का, बोलिए। सर एक बार वो CH2OH का फिर से बताओ। कुछ नहीं, ये लिखा ना मैंने, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर भी किया था। यस सर। कंसंट्रेशन रखो, चलिए मैं फिर से शेयर कर देता हूं आपको। अब अपने अपने मोबाइल पर मैंने आपको एक इमेज शेयर की है, उसको ये जो इमेज मैंने शेयर की है उसमें यदि आप देख पा रहे हो तो CH2OH लिखा हुआ है ऊपर, देखिए। यस सर। ओके, वो CH2OH के पास आप इसके बोर्ड पर देखिए, CH2OH और OH, क्योंकि एवरी टाइम व्हाट हैपेंस,
3 to 5 बाइंड हो रहा है, 3 का Yes, OH, 5 का CH2H, 3 का OH, 5 का CH2H, 3 का OH, 5 का CH2H, 3 का OH, 5 का CH2H. Agree? yes, sir. So when CH2H and OH, it binds, 2 water molecules released. Agree? Yes, sir. So I named the bond phosphodiester. I named the bond phosphodiester. और उसके लिए भी न्यूक्लियोटाइड आप देखोगे तो देयर इज अ स्ट्रक्चर गिवन, एडिनाइलिक एसिड, जो मैंने आपको ग्रुप पर शेयर किया है, वहां लिखा हुआ है CH2O, फास्फोरस की वैलेंसी 5 कर दी गई है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कर दी गई है. दिख रहा है स्ट्रक्चर? Yes, sir. Okay, perfect. So I call this, what I call this, again, dehydration synthesis. Dehydration synthesis, -2 water molecule. So bond is therefore phospho, what? Phospho Diester. diester bond. अब देखिए कितने सारे बॉन्ड हो रहे हैं. प्रोटीन था तो पॉलीपेप्टाइड था, पेप्टाइड था, हाइड्रोजन था, वंडरवॉल था, कोवेलेंट था, आयोनिक, डाइसल्फाइड, व्हाट नॉट, बट दैट वाज प्रोटीन. Here the bonds are only hydrogen bonds. This double and triple bonds are hydrogen bonds. These double and triple bonds are hydrogen bonds. These bonds are phosphodiester bonds. So only 2 bonds are there. One is hydrogen bond, one is phosphodiester bond. But one more bond that we are missing. One more bond. You don't think कि nitrogenous base when bind with pentose sugar, nitrogenous base when binds with pentose sugar, then there should be another bond. This is known as N-glycosidic bond. This is known as N-glycosidic bond. चलिए bonds के नाम ऐसे लिखवा देता हूं मैं. Bond number 1, N-glycosidic bond. N-glycosidic क्यों भाई? नाइट्रोजन और ग्लूको शुगर है ना, शुगर नाइट्रोजन, शुगर नाइट्रोजन, शुगर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N, शुगर का ग्लाइको. N-glycosidic bond किसके बीच में? किसके बीच में बोलिए? Pentose sugar and nitrogenous base. Nitrogenous base. Second bond hydrogen bond. In between बोलिए. nitrogenous base. Perfect. कौन बोला? Siddhi. Siddhi. Very nice. 2 nitrogenous base. Third, phosphodiester bond. किसके बीच में? किसके बीच में? 2 न्यूक्लियोसाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड? Resonites can answer. Nucleotide. बोलो. बोलिए. न्यूक्लियोसाइड. जोर से Side. बोलो. कौन? No. Nucleoside. साइड. Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड्स. भाई यहां देखकर तो किसी को भी लगेगा, बट रेजोनाइट्स कैन मेक द डिफरेंस. यार मैं फॉस्फोडाइएस्टर तो तब बनाऊंगा ना जब फॉस्फेट जुड़ेगा. जब फॉस्फेट जुड़ेगा तब तो फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा ना. तो फॉस्फेट जुड़ गया तो टाइड हो गया, फॉस्फेट जुड़ गया तो टाइड हो गया, और टाइड हो गया तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो दिस इज नीट पॉइंट्स, प्लीज नोट. ये तीनों बॉन्ड देखिए. नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे अभी बताइए. सर अभी नोट डाउन कर सकते हैं?
There are some doubts. Sir, in which book will we get the above material? Who asked? Who asked? Sir, Shaunak. डॉक्टर दहीभाते। डॉक्टर दहीभाते, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मटेरियल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बट रेजोनेंस के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हम लोग कंटेंट पूरा देते हैं और आपको कहीं किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर दहीभाते, आपको क्या समझ में नहीं आया मैं दिखाता हूं। बताइए अभी क्या समझ में नहीं आया शौनक? सर सब कुछ समझ में आया। बस तो फिर ये समझ में भी आया और मैं आपको जो है इमेज भी शेयर कर रहा हूं, प्लस लेक्चर्स में अपलोड नहीं कर पा रहा था वो आज अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, ओके सर। बट आप लोग सब साथ में लिख रहे हैं? आंचल, अनिरुद्ध, अर्णव लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। लिख रहे हैं सर। पीछे वाले बच्चे पूछने के रह ही जाते हैं मेरे। उर्वी, तेजस, सोहम, सिद्धि, सिद्धेश, प्रथमेश। Yes, sir. Yes, sir. सिद्धेश लिख रहे हैं आप? Yes, sir. तो सिद्धेश एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. तो शुड आई इरेज दिस? यस सर। No, sir. Wait. नो सर भाई। चलिए कोई बात नहीं, मैं इमेज शेयर कर देता हूं फिर मिटाता हूं, नो प्रॉब्लम। Okay. Should I erase this? दमीशा, ओम, मुग्धा, प्रथमेश, हवाले, प्रथमेश महाजन, उर्वी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आएगा मजा, हम उस स्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे और फिर बनाएंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो डीएनए का स्ट्रक्चर अपना परफेक्ट हो जाएगा। चलिए ओके, ऑक्सीजन, पेंटोज, छोटा स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको, जगह ज्यादा मिलेगी। लाइक दिस, so many I can draw, there is no issue, but same time oxygen, 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 like this। अब फटाफट यस बोलिएगा, agree with this? Yes, agree sir. with this? Yes, sir. बनाते समय टेक्निक बता रहा हूँ, why I am waiting, एक एक स्ट्रक्चर बना के why I am waiting, because आपको समझ में आए कि कैसे करना है, जस्ट अपोजिट कर देना। फिर ऑक्सीजन की तरफ से छोड़कर नीचे से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 इधर पे फ्री, अपोजिट आते हैं इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश अपोजिट। अब बाइंड करवा देते हैं, क्या बाइंड करा देते हैं? रैंडम एटी, चलो मैं 80 80 ही कर देता हूं सबको, या जीसी कर देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड, चलो कर दिया भाई जीसी। अब क्या करता हूं, ये तो साइड बन गया, साइड का तो मुझे बनाना है टाइड, व्हेन आई एम ट्राइंग टू फॉर्म टाइड 3 5 3 5, ये फ्री 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस। बनाते समय मैं फॉस्फोरस बाद में लिखता हूं तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियोसाइड के बीच में बन रहा है, बट फॉस्फोरस पहले बनता है, जुड़ता है और फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड्स के नाम क्या क्या थे? हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन रिपीटिंग, किसके बीच में बोलिए? Nitrogen and bases. बिटवीन एन बेस, परफेक्ट।
परफेक्ट. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बोलिए. पेंटोज शुगर Pentose और sugar एन and nitrogenous bases. N बेस एंड शुगर. थर्ड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स Nucleotides. Two nucleotides. That's it. That's it. Perfect. अब क्या होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर तो अपने समझ में आ गया. इसका एक बेसिक कंसेप्ट या नोट अपन ऐसा लिखते हैं, मोर जीसी कंटेंट, मोर स्टेबल डीएनए. और एक्सप्लेनेशन विनर बैच से एक्सपेक्ट करूंगा, क्यों ऐसा मुझे बताएं. ट्रिपल बॉन्ड. टेल मी. Sir, because of triple bond. वेरी नाइस. कौन बोला? Sir, Manas. मानस. भाई जाहिर सी बात है, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर तो एज कंपेयर टू डबल वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ना. सो द ऑर्गेनिजम्स, द स्पीशीज दैट हैव मोर जीसी कंटेंट हैव मोर स्टेबल डीएनए देन द मोर देन एटी कंटेंट. परफेक्ट. बट वॉटसन एंड क्रिक साहब ने क्या देखा यार, कि ये ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोटीन का सिंपल लाइन स्ट्रक्चर होता था वैसे इसका सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है. जो इसका सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में यदि मैं मोर न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ा दूं, ऐड कर दूं, तो इसमें भी ट्विस्ट आने लगेगा. जब इसमें ट्विस्ट आने लगेगा तो वो स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की तरफ. देखिए ट्रायंगुलर फॉर्म में बना रहा हूं थोड़ा सा. लाइक दिस. ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहा हूं. ये डीएनए ऐसे बनाने के लिए, समझाने के लिए मैं कभी बता दूं, बात अलग है. डीएनए ऐसे बनाना है आपको, है ना. नाउ पहले देख लीजिए, इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल. इसको कर दिया 3' to 5', तो इसको कर दीजिए 3' to 5'. प्रथमेश, सिद्धेश, शौनक, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. What we can do, this is known as one turn. ये इसको कहता हूं मैं क्या, इस फिगर को क्या कहता हूं? फिगर प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. इसी को कहते हैं बैकबोन स्ट्रक्चर. And this is known as what? This figure. This figure is secondary structure and double helix structure. Secondary structure और double helix structure. Double helix structure की खासियत क्या है? Double helix structure की खासियत, from this it is one turn. It is one turn. Or we can say this is one turn. That consists of 10 base pairs. That consists of 10 base pairs. मतलब GC80. भाई कॉइलिंग शुरू हो जाएगी ना, जब ज्यादा होगा तो कॉइलिंग शुरू. अब 10 बेस पेयर कैसे? डबल बॉन्ड 80, डबल बॉन्ड 80, डबल बॉन्ड 80.
GC, GC, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the 10 base pairs. 10 base pair per turn. Or per 34 angstrom. So when it started coiling, it becomes super coil. इतना सारा इतना लंबा थ्रेड है. मैंने आपसे कहा था ना कि this thread, if you count the total DNA of human cell, you need to travel 6 times from Earth to Moon. इतना लंबा धागा. अब इतना लंबा धागा तो उसमें टर्न आएगा, हेलिक्स बनेगा, जैसे प्रोटीन में मैंने बताया था आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो इसमें भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा. सो ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बच्चों कहते हैं. Every 34 degree, every 34 angstrom, there will be one turn. And if we count the base pairs, then the base pairs will be 10. Then the base pairs will be 10. If someone will ask you the diameter, it is 20 angstrom. It is 20 angstrom. Can you tell me the distance between two base pairs? Anyone? The distance between two base pairs? 3.4 angstroms. कौन बोला? Sir, Manas. Very nice. This is 3.4 angstrom between two base pairs. Between two base pairs, BPs. Agree? If someone will ask you, कि our DNA is right-handedly coiled or left-handed? It is right-handed. Our DNA is BDNA. Human DNA is BDNA. There are B, C, Z, A, different types of DNA. But BDNA is what? Right-handed. Coil. मतलब कॉइलिंग की जो शुरुआत करेंगे तो राइट हैंडेड कॉइल करेंगे, लेफ्ट हैंडेड कॉइल नहीं होगी. कॉइलिंग जो होगी वो राइट हैंडेड कॉइल होगी. इसको समझना है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना. अजीब सा लगेगा सुनने में. मम्मी दीदी लोग जो चोटी बनाती हैं तो चोटी में वो 3 स्ट्रैंड कंसीडर करते हैं. एक स्ट्रैंड दूसरे के ऊपर, फिर उसको स्टेबल, दूसरा उसके ऊपर, फिर वो स्टेबल, तीसरा उसके ऊपर. हम क्या कंसीडर करते हैं कि बीच में एक एक्सिस है और उस एक्सिस में एक स्ट्रैंड ऐसा, दूसरा स्ट्रैंड ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. So while you are turning on a strand over the another, you will find two grooves. One will be minor groove and one will be major groove. Major groove, minor groove. Major groove and minor groove. Agree? Agree? Yes, sir. Okay. I think एक तो आज लेट कर दिया है आप लोगों ने थोड़ा सा. आज हमें 45 मिनट 50 मिनट से आ जाए. No problem. Because already it's 4:45. अब न्यूमेरिकल्स उस पर कुछ करवाने थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि वो पाएंगे. No problem. This model is proposed by. हाँ बोलिए. वो ह्यूमन डीएनए इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने? BADNA. BDNA. 4 टाइप के डीएनए होते हैं. A, B, C, D, Z. 5 टाइप के. उसमें अपना डीएनए BDNA होता है. उसके कैरेक्टर्स आपको हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं, बट फिर भी मैं 12th में पढ़ाऊँ. अभी जरूरत नहीं है. वॉटसन एंड क्रिक, जिसके लिए 1953 में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज. हाँ ओम बोलिए. सर आप ये फोटो भेज सकते हो ग्रुप में? हाँ हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ.
तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है? नहीं सर, वो कुछ पार्ट रह रहा है इसलिए वो हो नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा भेज दीजिए। समझने में कोई प्रॉब्लम तो बताओ, इमेज तो मैं भेज दे रहा हूँ, बट समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर, समझने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। Because it's already 4:50 my dear. So I'm going to close the session right now. Next इसमें मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे चीजें हमें समझनी है कि डीएनए कैसे है और डीएनए कितना कितना होता है, चारगाफ का रूल क्या है। तो चारगाफ रूल नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या चारगाफ रूल याद दिलाइएगा। Perfect. चलिए, so I'm going to close the session. In next, please go through, please download the NCERT pages from online, nucleic acid part और nucleotide part. Perfect. जिसमें रिपीट करूँ यदि मैं, तो पेंटोज पर बेस प्लस phosphorus makes tide. If no phosphorus, side. Perfect. चलिए, see you in the next class. Till then, please go through, read carefully. इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अब बचा होगा आई थिंक लिपिड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। वी विल स्विच टू LPC। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। टुडे Thank एनी you, डाउट? sir. प्लीज टेल मी फाइनल कॉल। एनी डाउट इन टुडे सेशन? No doubt, sir. Thank you, sir. All the best. Going to close the session.